Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Welcome back to one and all to Steven Sir Makes It Easy, जहाँ पे आज हम एक नई शुरुआत करेंगे, और वो नई शुरुआत का नाम क्या है? अगेन हमेशा की तरह मेरे ऊपर लिखा गया है और हाईलाइट किया गया है. Ledger is the name of the chapter. So if you are somebody who is a student related to the accounting field, तो डेफिनेटली अगर अकाउंट्स की शुरुआत आपके लिए की गई है, सबसे पहले आपको जर्नल ट्रेडिशनल स्टाइल में, मॉडर्न स्टाइल में पढ़ाया गया होगा, एंड द वेरी नेक्स्ट स्टेप बिकम्स लेजर. स्पेशली अगर आपका नेक्स्ट ईयर में 12th स्टैंडर्ड HSC बोर्ड है, 10+2 है, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर कोई मुझसे ये सवाल करे, सर आपके मुताबिक ये जो लिस्ट है ना, इसके अंदर से मुझे अगले साल में काम क्या आएगा, वेरी इंपॉर्टेंटली सुन लो. सिंपल सी बात है बट सुन लो. द चैप्टर ऑफ जर्नल आपके बहुत काम आएगा. द चैप्टर ऑफ लेजर जो आज स्टार्ट होने वाला है आपके बहुत काम आएगा, एज वेल एज दिस चैप्टर विच इज़ राइट बिहाइंड, ये जो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, चैप्टर नंबर 9 विच इज़ फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ प्रोप्राइटरी कंसर्न. नेक्स्ट ईयर्स पेपर is completely made up of 3 chapters: journal, ledger, final accounts. So my request, the entire syllabus ऊपर से लेकर नीचे तक हमारे चैनल पे अवेलेबल है राइट नाउ. वो जो क्वेश्चंस जो सरकारी टेक्स्ट बुक में है, हम वो कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं. बट इफ़ यू आर समबडी कि सर मेरे यहाँ पे तो सब्सिडरी बुक्स भी है, मेरे यहाँ पे तो डेप्रीसिएशन भी है, नॉट अ प्रॉब्लम. उसको ऑलरेडी सिखाया गया है ये चैनल पे. प्लेलिस्ट की कैटेगरी में आप जा सकते हो, चैप्टर का नाम को टाइप कर सकते हो, ऑटोमेटिकली लिंक ऑफ दैट पर्टिकुलर एंटायर चैप्टर्स लेक्चर्स इज अवेलेबल राइट नाउ. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज लेजर? पुराने लेक्चर्स में अकाउंट, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, एंड द वेरियस रूल्स ऑफ पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, पूरा कुछ कंप्लीट कर लिया है हमने. तो सिंपल से लेके, मीडियम से लेके, अपर मीडियम से लेके डिफ़िकल्ट सारे क्वेश्चंस कवर अप कर लिए हैं. राइट नाउ हमारा कंसंट्रेशन है कि ये जो लेजर होता है ना, सबसे पहली बात, ये लेजर सर दिखता किस तरह है? तो पहले तो आपकी मैं नज़र वहाँ पे लेके जाता हूँ. सो समथिंग बिहाइंड, नेम ऑफ द अकाउंट सेंटर में आता है, उस एंड को, इस एंड को डेबिट कहते हैं, और ये ठीक मेरे पीछे उसको कहते हैं क्रेडिट. इसका कंस्ट्रक्शन, डेबिट में क्या आएगा, क्रेडिट में क्या आएगा,
ऑब्वियसली ये मुझे करना है, बट वेरी सिंपली पुट लेजर दिखता किस तरह है, समथिंग लाइक दिस। उसमें डेट, पर्टिकुलर्स, JF ऊपर लिखा गया है, जर्नल फोलियो। आई कम टू दैट। फिर से डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, JF एंड अमाउंट। इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। सो अगर ये इस तरह दिखता है, ये हमारे किस काम का है? ओके, थोड़ी चर्चा उसके ऊपर कर लेते हैं, क्योंकि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इट सेज द वर्ड लेजर, ये कहाँ से लिया गया है? इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेजर, जिसका मतलब है टू कंटेन। उसके अंदर कोई ना कोई इंफॉर्मेशन किसी न किसी के बारे में लिखा गया है। क्या जर्नल के अंदर इंफॉर्मेशन नहीं था, बट उसके अंदर सब इंफॉर्मेशन था। कभी कभी क्या होता है ना, इवन गूगल, आजकल हमने सर्च वर्ड यूज करना बंद कर दिया है। हम कहते हैं गूगल कर लो। क्यों? गूगल के पास में टेक्स्ट का, डेटा का, नंबर का, पिक्चर्स का, वीडियो का, ऑडियो का, सारा इंफॉर्मेशन है। वेल, काफ़ी हद तक इंफॉर्मेशन है, बट व्हेन गूगल नोज, उनको खुद को पता है हमारे पास ये सारा इंफॉर्मेशन है, बट अगर कोई एक वर्ड टाइप करे और वर्ड से कनेक्टेड फोटो है हमारे पास, इमेज हमारे पास, उसका पेपर में आर्टिकल है हमारे पास, उसका एक वीडियो है, सो वेबसाइट है, सो गूगल ऑल्सो नोज। देखो, इंफॉर्मेशन तो सब है हमारे पास, बट हमें ये इंफॉर्मेशन को क्या करना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंटली अलग अलग प्रेजेंट करना पड़ेगा, सो दैट द यूजर कैन obtain his information faster. Very importantly, similarly उसी तरीके से जर्नल में पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, ट्रेड डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है, आउटपुट CGST, इनपुट CGST, आउटपुट मतलब सारा थामझाम है। बट अगर किसी को एक स्पेसिफिक अकाउंट, नहीं मेरे को ये सब नहीं जानना, मेरे को सिर्फ सुनील के बारे में जानना है, मेरे को सिर्फ कार के बारे में जानना है, फर्नीचर के बारे में जानना है, एडवर्टाइजमेंट के बारे में जानना है, सो वी हैव टू प्रोवाइड स्पेशल इंफॉर्मेशन। तो ये स्पेशल इंफॉर्मेशन लेजर में होता है, और वो मैं आज आपको सिखा रहा हूं। फाइन, आगे क्या दिया गया है? एज द लेजर इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द अकाउंट्स, सो इट कंटेन्स, उसके अंदर इंफॉर्मेशन होता है, एंड हेंस द नेम सिग्निफाइज कि लेजर का मतलब है उसके एक चीज के अंदर इंफॉर्मेशन। अच्छा, अलग अलग लोगों ने अपने अपने विचारधारा के हिसाब से अलग अलग डेफिनेशंस दिए हैं। एक पढ़ लेते हैं। कहते हैं, दिस इज SP जैन, अ लेजर अकाउंट मे बी डिफाइंड एज अ समरी। समरी का मतलब पूरी इंफॉर्मेशन एक साथ में। ओके, एक अकाउंट की पूरी इंफॉर्मेशन, वो पर्सनल हो सकता है, रियल हो सकता है, नॉमिनल हो सकता है, एसेट हो सकता है, लाइबिलिटी हो सकता है, इनकम हो सकता है, एक्सपेंस हो सकता है। ओके, स्टेटमेंट ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू या तो पर्सन, या तो एसेट, या तो एक्सपेंस, या तो इनकम, जो मैंने बताया, विच हैव टेकन प्लेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एंड शोज देयर नेट इफेक्ट। ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम से यहाँ पे क्या मतलब हो गया? कभी 1 महीने के लिए, कभी 6 महीने के लिए, तो एक टाइम पीरियड होता है, बराबर। और उसका जो नतीजा, नेट इफेक्ट का मतलब डेबिट क्रेडिट को अगर आप समराइज करते हो तो बचा क्या है? क्या डेबिट ज़्यादा है, क्या क्रेडिट ज़्यादा है, कि दोनों सेम है, समान है? लेजर ये इंफॉर्मेशन देता है। जर्नल ये नेट इफेक्ट की इंफॉर्मेशन देने में असमर्थ है। I hope my Hindi was decent enough. It's not capable of giving you the net effect of debit and credit. So, ledger की हमको मदद लेनी पड़ती है। ओके, अगर हम लेजर की पढ़ाई करें तो हमें क्या क्या फ़ायदे होंगे? देखो, फ़ायदे तो आपको अनेक होंगे, एक एक करके देख लेते हैं। एंड द थिंग इज़, अभी थोड़ी डिफ़िकल्टी क्या है ना, उस पर ज़्यादा मैं आपको अभी बता नहीं सकता हूँ। क्यों नहीं बता सकता? वेल, सिंपल रीज़न ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो चैप्टर्स आपको कवर अप नहीं किए गए हैं, तो वो थोड़ा अंडरस्टैंड करने में मुश्किल हो जाता है। बट स्टिल अपनी पूरी कोशिश करेंगे, मैं करूँगा, आप भी कर लेना। सो
इट इज अ समराइज्ड रिकॉर्ड, इट इज अ टूगेदर, समराइज का मतलब टूगेदर ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस इन द फॉर्म ऑफ एसेट, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम। एसेट की जानकारी, लाइबिलिटी की जानकारी। एसेट मतलब मेरा, लाइबिलिटी मतलब पराया, एक्सपेंस मतलब खर्चा, इनकम मतलब कमाई। ये आपको एक जगह पर मिल जाता है। ओके, जब मैं उसी का एक चैप्टर पढ़ा रहा था 12th के बच्चों को, ओके, ओसी या इकोनॉमिक्स का। सो इंडस्ट्रियलिस्ट को, जो लोग नई नई इंडस्ट्री स्टार्ट करते हैं, बराबर, उनको एक दिक्कत होती है। जब भी वो अपने नए बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, उनको गवर्नमेंट के अलग अलग हेल्थ डिपार्टमेंट, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट, ऐसा डिपार्टमेंट, वैसा डिपार्टमेंट, दे हैव टू टेक मैनी मैनी परमिशंस। इसके पास जाओ, फाइल दो, उसके पास जाओ, पेपर दो, इसके पास जो सर्टिफिकेट लो। सो गवर्नमेंट ने एक सिंगल विंडो क्लियरिंग सर्विस स्टार्ट की। सिंगल विंडो मतलब एक ही जगह पे जाओ, अपना फाइल दे दो और वहीं पे सारे परमिशंस आपको मिल जाएगी, सारी जानकारी मिल जाएगी। लेजर कुछ उस तरह है कि आपको एसेट के बारे में जानना है तो 10 जगह पर मत जाओ, एक जगह पे जाओ, कार में जाओ, कार की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बिल्डिंग में जाओ, मशीन में जाओ, बिल्डिंग की इंफॉर्मेशन, मशीन की इंफॉर्मेशन। सो आई रिपीट माई सेल्फ, एडवर्टाइजमेंट में जाओ, उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। डिविडेंड में जाओ, इंटरेस्ट में जाओ, कमीशन में जाओ। व्हेन यू गो टू अ लेजर, you get a specific special information. जनरल एरा गैरा नतु खेरा, ओके, वो इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। ओके, द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ बुक कीपिंग। देखो, हम लोग बुक कीपिंग मतलब रिकॉर्ड कीपिंग, व्हाई डू वी डू दैट? हमको क्यों ये सब लिख के रखना है? ओके, आजकल वो डिजिटल स्टाइल में हो गया है, बट स्टिल लिख के तो रखना है हमको, बिकॉज एक बिजनेसमैन को हमेशा ये याद रखना है। क्या याद रखना है? ये मुझे कितना पैसा लेना है, मुझे कितना पैसा देना है, लेना है, देना है। बिकॉज अ बिजनेसमैन हैज टू डू लेन देन विथ सो मेनी पीपल। इतने लोगों के साथ उसको लेन देन करना पड़ता है कि वो सारा इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में नहीं रख सकता। और अगर थोड़ी गड़बड़ी हो गई ना, तो कस्टमर या तो सप्लायर कोई ना कोई बुरा मान जाएगा। तो लेजर ये इंफॉर्मेशन को याद रखने में हेल्प करता है, कितना लेना, कितना देना। इट इज नेसेसरी इन प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो ये ट्रायल बैलेंस क्या होता है? थोड़ा देर रुक जाना, यही चैप्टर के एक प्रॉब्लम में हम सॉल्व करेंगे। आगे थोड़ा क्षमा चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। ओके, ये गंगा जमुना बह रहा है, इसके लिए बीच बीच में थोड़ा ऑडियो चेंज होते रहता है। तो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या है? हर बिजनेसमैन का एक पोजीशन होता है। मेरे कंपनी का ना ये रैंक है, मेरे बिजनेस का ना ये रैंक है, तो वो जानने में लेजर हमारी मदद करता है। इट इज पॉसिबल टू प्रिपेयर वेरियस टाइप्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट। इंपॉर्टेंट सर, ये इनकम स्टेटमेंट क्या होता है कि बॉस आप कमाते कितना हो, तो कैसे पता चला? मेरे खर्चे मैंने लिखे, मेरी कमाई, सॉरी उल्टा, मैंने कमाई मेरी लिखी, मेरे खर्चों को निकाल दिया, पता चल गया मैं कमाता कितना हूं। अच्छा, टोटल कैसे पता चला खर्चों का और कमाई का? अरे लेजर से पता चला। ओके, लेजर कैन बी यूज्ड एज अ कंट्रोल टूल as it shows various expenses with the balances। देखो, अगर अगेन ऑडियो के लिए क्षमा चाहता हूं। सो अगर आपको आपके पर्सनल लाइफ में, पारिवारिक जिंदगी में या बिजनेस में किसी भी तरीके का कंट्रोल लाना है, तो खर्चों पे कंट्रोल रहना बहुत जरूरी है। मतलब, अरे तू खर्चा कितना करता है? अगर फैमिली की बात हो रही है, तुम होटल में कितनी बार जाते हो, तुम पिक्चर देखने के लिए कितनी बार जाते हो, तुम कितने का पेट्रोल डालते हो, तुम कितने बार सिलेंडर लेकर आते हो, ये सारे खर्चे होते हैं, बराबर। अगर आपके पास में इंफॉर्मेशन है, अच्छा इसमें इतना खर्चा हो रहा है, उसमें इतना खर्चा हो रहा है, यू कैन थिंक ये मैं कम कैसे करूं? मैं ये प्रोडक्ट लेके आता हूँ, ये ब्रांड लेके आता हूँ, ये 10 रुपया ज़्यादा है, अच्छा क्या कोई वही क्वालिटी का दूसरे प्रोडक्ट का मुझको, मतलब आप सोचते हो कंट्रोल लाने के लिए लेजर आपकी हेल्प करेगा। देन ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट शोन इन द लेजर, लेजर में जो भी नतीजे दिखते हैं ना, इट इज यूजफुल फॉर द मैनेजमेंट टू फोरकास्ट और प्लान द फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन। जो भी लोग मैनेजमेंट में बैठे हैं, मैनेजमेंट मतलब जो ड्राइवर है, बिजनेस के ड्राइवर, किस दिशा में उस बिजनेस को जाना चाहिए, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन लेजर की इंफॉर्मेशन से वो उनके लिए काम आता है। अगला, लेजर दिखता किस तरह है? जैसे मैंने पहले बताया, तो
उसमें एक डेट कॉलम रहता है विच इज क्वाइट ऑब्वियस क्योंकि डेट असेंडिंग ऑर्डर में ये सॉल्व होता है। पर्टिकुलर्स इंफॉर्मेशन रहती है, बराबर। इंफॉर्मेशन किस बारे में कि इस वाले लेजर में किसकी इंफॉर्मेशन है, ओके। तो पर्टिकुलर्स के अंदर डिटेल्स लिखे जाते हैं। जर्नल फोलियो ये क्या है, देख भाई, JF को कहते हैं, फोलियो को कहते हैं पेज नंबर। आपने थोड़ा देर पहले, डोंट वरी, मैं ये दिखाने वाला हूं। हाँ, पर्टिकुलर्स में उस तरफ पे टू लिखा जाता है, इस तरफ पे बाय आता है। टू सम इंफॉर्मेशन, बाय सम इंफॉर्मेशन। अब ये टू कौन सा इंफॉर्मेशन है, बाय कौन सा इंफॉर्मेशन है, थोड़ा टाइम जाएगा उसको आपको समझने में। थोड़ा मतलब आज ही के लेक्चर में मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूं। सो इन अ लेजर आप कैसे बनाओगे एक लेजर को, देखो कोई भी पेज रहने दो, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट या राइट, दो पेज बनाने की जरूरत नहीं है। आपको वो पेज को दो हिस्सों में बांटना है, टू पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स, ओके। आप चाहो तो मार्जिन को भी यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, उस तरफ मतलब डेबिट साइड पे 4 कॉलम्स, डेट, पर्टिकुलर्स, JF अमाउंट। सेम 4 कॉलम्स ऑन द क्रेडिट साइड, डेट, particulars, JF amount. The left side is called as debit, the right side is called as credit. Okay, हमको ये अंडरस्टैंड करना है, ये जो नेम ऑफ अकाउंट है ये क्या नेम है बताता हूँ, डोंट वरी। एंड इसके डेबिट में ये टू कैसे लिखूँ, क्रेडिट में ये बाय कैसे लिखूँ। ओके, थोड़ा गाड़ी आगे लेके जाते हैं। एक जनरल आइडिया देता हूँ कि हम लोग करने क्या वाले हैं। हम ऑलरेडी जर्नल कर चुके हैं, दैट वन। एंड हमने जो जर्नल में लिखा एंट्रीज, उसको कहते हैं जर्नलाइजेशन। जर्नलाइजेशन। अभी हम लेजर सीखने वाले हैं, और लेजर के अंदर इंफॉर्मेशन कैसे आएगा उसको हम कहते हैं पोस्टिंग। एक डाकिया, एक पोस्टमैन करता क्या है, लेटर लेता है, घर पे डिलीवर करता है, लेटर लेता है, घर पे डिलीवर करता है, उसको कहते हैं पोस्टिंग। हमको भी सीखना है, हम भी अकाउंट्स में पोस्टमैन बनेंगे। एंड लेटर ऑन यही लेजर में हम एक टोटल करने वाले हैं जिसको हम कहते हैं कास्टिंग। एक स्टेप जर्नलाइजेशन डन, क्योंकि हमने वो पहले ही सीख लिया है। आज हम लेजर के अंदर पोस्टिंग क्या होता है, कास्टिंग क्या होता है, ये सीखने वाले हैं। आज का एक बहुत सिंपल सम, जहाँ पे मैं आपको एक लेजर पढ़ाऊंगा, थोड़ी ना लेजर की फीलिंग आ जाएगी, क्योंकि जब मैं आपको पूरा प्रॉब्लम पढ़ाऊँ तो वो पूरा प्रॉब्लम खत्म होते होते आधा घंटा चला जाएगा। आज सिंपल इंट्रोडक्शन देता हूँ मैं, ट्रेलर दिखा रहा हूँ मैं, ओके, कि भाई ये लेजर के झुंड में हमको कौन से टाइप के वेरिएशंस आएंगे। अबाउट 2018 फेब 1 तारीख, तो फेब 1, 6, 12, 19 4 ट्रांजैक्शंस दिए हैं, 4। उसमें क्या इंफॉर्मेशन है, सोल्ड गुड्स टू राघव 6000। अगर आप ये जो है सोल्ड गुड्स टू राघव, इसकी जर्नल एंट्री करो तो आप क्या लिखोगे, देखो भाई राघव रिसीवर है और सेल्स एक इनकम है, सेल्स एक इनकम है। सो दिस इज द जर्नल एंट्री। तो जब आप लेजर बनाओ, जो ये मेरे पीछे है, ये मैं स्टार्ट करता हूँ, बट पहले जर्नल का होना कंपलसरी है। जर्नल के बगैर लेजर का इन्वेंशन करना, लेजर को स्टार्ट करना इम्पॉसिबल। ओके, ये तो हो गया हमारी पहले जर्नल एंट्री, ये तो हमने पहले भी सीखा है, वेरी ट्रू। 6 तारीख, रिसीव्ड कैश फ्रॉम राघव आया, कितना 5400, एंड अलाउड हिम अ कैश डिस्काउंट ऑफ 600। थिंक अबाउट इट, पैसे जब आते हैं तो उसमें से आप कुछ काट के कस्टमर को लौटाते नहीं हो। आपने कस्टमर को पहले ही बोला है 600 रुपया मत दे, तेरा डिस्काउंट, बाकी दे 5400, तो वो है डेबिट वॉट कम्स इन। सो इफ समबडी वुड आस्क मी, और फॉर दैट मैटर एनीबडी, कि सर इसका जर्नल एंट्री किस तरह आएगा, कुछ इस तरह, कैश अकाउंट होगा डेबिट और डिस्काउंट अलाउड डेबिट, क्योंकि हमने कस्टमर को कहा 600 रुपये मत दो, हमारा नुकसान, और वो कस्टमर गिवर है राघव 6000। देन अकॉर्डिंगली जो भी उसका नरेशन हम लिख सके, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम राघव एंड डिस्काउंट अलाउड। सो ये थे हमारे फर्स्ट 2 जर्नल एंट्री। लेजर को टाइम है, डोंट वरी, पहले आप पूरे जर्नल को
रेडी रख ले। ओके, उसी के बाद में लेजर का डिस्कशन हम कर सकते हैं। मूव ऑन करते हैं विद आ नेक्स्ट जर्नल एंट्री। क्वेश्चन सेज 12th को इनवॉइस्ड गुड्स टू राघव 14,000। क्वेश्चन मतलब क्या है? देखो, टू का मतलब आपने गुड्स दिया तो बेचा होगा, उसके अलावा तो उसका कोई दूसरा मतलब या तीसरा मतलब निकलना नहीं चाहिए। अगर मैं गुड्स राघव को बेचता हूं तो मैं क्या एंट्री करूंगा? देख भाई, जो 1st Feb को आपने किया वही एंट्री आपको रिपीट करनी है, बिकॉज आपने अगेन गुड्स बेचे, वैल्यू अलग था। राघव टू सेल्स, राघव आपका कोई रेगुलर कस्टमर होगा तो आप हर 2 हफ्ते में उसको आप गुड्स बेचते हो। उसके बाद में नेक्स्ट एंड लास्ट, रिसीव्ड फ्रॉम राघव 6,000। क्वेश्चन, अरे राघव से क्या मिला? अभी कस्टमर है तो आपको क्या मिलेगा? नॉर्मली तो पैसे मिलेंगे, बराबर, जूते थोड़ी मिलेंगे, फूल गोभी थोड़ी मिलेगा, पैसे आए। रिसीव्ड का मतलब वो है डेबिट व्हाट कम्स इन, राघव इज द गिवर। ओके, दिस ब्रिंग्स टू एन एंड वेरी सिंपल एंट्रीज इंफॉर्मेशन जो राघव के साथ कनेक्टेड है। इसका हम टोटल एंड में लिख लेते हैं, विच इज 32,000। लेजर के पहले जर्नल का रेडी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया। अभी हम किसका लेजर बना रहे हैं? मैंने आज सिर्फ इंट्रोडक्शन देने के लिए एक इंफॉर्मेशन लिया है। अगर आप इस पर्टिकुलर एंट्रीज को चेक करो तो कितने अकाउंट है? देखो, राघव का एक अकाउंट है, सेल्स का एक अकाउंट है, कैश डिस्काउंट अलाउड, मतलब मैंने 4 की गिनती कर ली, राघव को दोबारा नहीं गिनता हूं, सेल्स को दोबारा नहीं गिनता, मतलब 4 अलग अलग इंफॉर्मेशन है। राघव है, सेल्स है, कैश है, डिस्काउंट अलाउड, 4। बट टुडे आई विल ओनली कॉन्सेंट्रेट कि अगर राघव आए, मेरा कस्टमर है ना, राघव आया दुकान पे और पूछ रहा है, अरे मेरा क्या लेन देन बाकी है, कितना लेना देना है, तो आई हैव टू गिव हिम, मुझे उसको उसी की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, दुनिया की पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देनी पड़ेगी। सो हम राघव की इंफॉर्मेशन को जर्नल में नहीं, ये जर्नल उसमें नहीं, हम लेजर में ढूंढेंगे। अच्छा, ये जो ऊपर गया, दिस इज द कंस्ट्रक्शन, बराबर, ऑफ राघव लेजर या राघव अकाउंट आप उससे कह सकते हो। आई रिपीट माई सेल्फ, डेबिट साइड पे क्या है जी? डेट है, पर्टिकुलर्स है, जेएफ अमाउंट, जर्नल फोलियो, जर्नल का पेज नंबर, और डेट दोबारा, पर्टिकुलर, जेएफ एंड अमाउंट। ओके, सो ये 2 साइड होते हैं। बीच में हमने राघव, नेम ऑफ अकाउंट, राघव, बराबर, दिस इज अ पर्सनल अकाउंट, बराबर। अब क्या कर रहे हैं? देखो, ऊपर से नीचे तक जर्नल में मैंने जर्नलाइजेशन किया, अब मैं पोस्टिंग करूंगा। ओके, किसकी पोस्टिंग? राघव। कैश की नहीं करोगे? नहीं। डिस्काउंट की नहीं करोगे? नहीं। सेल्स की नहीं करोगे? नहीं। सिर्फ राघव पे ध्यान दे रहा हूं। चलो राघव पे ध्यान देते। अच्छा, कैसे ध्यान दे? जहां पे भी राघव का नाम आए, 1 तारीख को है, 3rd को भी है, 17th को भी है, 20th, अरे हर दिन पे राघव का नाम है। ओके, तो हर दिन से राघव की चिट्ठी इंफॉर्मेशन, चिट्ठी लेटर हमको लेना है और हमको राघव के घर में जमा करना है। ये राघव का घर है और किसी का घर नहीं, ये राघव का घर है। ओके, चलो काम करते हैं। 1st Feb को राघव क्या है? देखो, बोला ना, डेबिट, डेबिट, राघव डेबिट, आई रिपीट, राघव डेबिट, ये तो कोई सीक्रेट की बात नहीं है। अच्छा, राघव डेबिट कैसे करें? लेजर में जाओ और देखो, 2018 डेट कॉलम में आ गया। यू कैन सी दिस पर्टिकुलर एरो, इट इज इंडिकेटिंग डेबिट का डायरेक्शन, राघव के डेबिट का डायरेक्शन। अच्छा, ये राघव है और ये उसका डेबिट है। डेबिट में आप क्या लिखते हो? इसके पहले मैंने बताया, पर्टिकुलर्स में आता है टू, पर्टिकुलर्स क्रेडिट में आएगा बाय, पर यहाँ पे हम टू लिखेंगे। 1st Feb क्या लिखेंगे? 1st Feb टू सेल्स
6000। आई रिपीट, राघव में 2 सेल्स किधर से आया? देखो ऑपोजिट में क्या लिखा है? सेल्स, तो पोस्टिंग में आना चाहिए 2 सेल्स। 2 फिक्स्ड है, क्रेडिट में बाय फिक्स्ड है, उसके आगे कौन से खाते का नाम लिखना है वो आपको ऑपोजिट में देखना पड़ेगा। वेरी सिंपल। आपने क्या किया? पोस्टिंग, 1 तारीख का पोस्टिंग। ओके, आगे 3 तारीख का पोस्टिंग। राघव क्या है? क्रेडिट। आई रिपीट, प्लीज लुक बिहाइंड। राघव को क्या किया है? क्रेडिट, क्योंकि देखो क्रेडिट के स्टाइल में है, क्रेडिट के पार्ट में है, क्रेडिट के हिस्से में है। कितना? 6000। तो राघव के एरो को देखो, राघव के क्रेडिट में डेबिट कहा, यू हैव टू राइट ऑन द डेबिट साइड। क्रेडिट कहा, यू हैव टू राइट ऑन द क्रेडिट साइड। अच्छा, क्रेडिट में लिखना है, मतलब ये वाले डायरेक्शन में, गाड़ी यहाँ पे जाएगी। लिखिए क्या? देखो ऑपोजिट में कैश और डिस्काउंट अलाउड है, राघव के खाते में राघव का नाम नहीं आएगा। किसी का भी आप लेजर बनाओ, कैश का बनाओ, प्लांट का बनाओ, मशीन का बनाओ, फर्नीचर, उसके खुद के नाम को नहीं लिखना। तो ऑपोजिट में जो दिया है, अच्छा ऑपोजिट में तो कैश भी दिया है और डिस्काउंट अलाउड, दोनों आ जाएगा, दोनों आ जाएगा। 6000 आना चाहिए। ओके, दो बार 6000 नहीं लिखेंगे, कैश का 5400, डिस्काउंट अलाउड का 600, ऐसे हम मेंशन करेंगे। ओके, सो 3 फेब पहले हम लोग लिखेंगे बाय कैश, उसका अमाउंट, और सेकेंड हम लिखेंगे बाय डिस्काउंट अलाउड, उसका अमाउंट। सो on 3rd Feb, the total on the credit side of Raghav is 6000. I repeat, 2 बार 6000 नहीं लिखा, the total is 6000. एक लेजर को, ऊपर राघव अकाउंट इज ए लेजर, 2 ही ऑप्शन से, तीसरा ऑप्शन है ही नहीं, या तो डेबिट या तो क्रेडिट। पहले वो डायरेक्शन को आप डिसाइड कर लो, एंड यू डोंट हैव टू डिसाइड एज सच, यू हैव टू ओनली लुक एट द जर्नल। नेक्स्ट 17 फेब, राघव डेबिट। ओके, देखो ये डेबिट हो गया, इट्स सिंपल, दिखता है, मतलब चश्मा निकाल के देखोगे तो भी दिख जाएगा, इतना सिंपल। लिखूं क्या? ऑपोजिट में क्या है? सेल्स। चलो 17 फेब को 2 सेल्स 14,000, सिंपल पोस्टिंग। ऑपोजिट में जो है उसको रिकॉर्ड करो। 20th फेब, राघव क्रेडिट में है, सो क्रेडिट साइड पे अपनी गाड़ी को ले लो, बाय, बाय आएगा। ओके, बाय कैश अकाउंट 6000। क्या किया आपने अभी तक? पोस्टिंग। आई रिपीट, क्या किया अभी तक? पोस्टिंग। जर्नल से इंफॉर्मेशन राघव का लिया, डाला लेजर में, जर्नल से लिया इंफॉर्मेशन, डाला लेजर में। पोस्टिंग के बाद क्या करते हैं? क्योंकि राघव दुकान के बाहर या दुकान के अंदर काउंटर पे खड़ा है, बताओ मेरे को जल्दी जल्दी क्या लेना है, क्या देना है, हमको बताना पड़ेगा उसको। राइट नाउ हम वो कर सकते हैं कास्टिंग करके। ये कास्टिंग में क्या होता है? सबसे पहले तो ग्रैंड टोटल, ग्रैंड टोटल इस तरफ और उस तरफ। ग्रैंड टोटल के बाद में आपको क्या करना है? आपको पेंसिल में डेबिट का टोटल 20,000, क्रेडिट का टोटल 12,000, पेंसिल में, मैंने ब्लू में लिखा है, पेंसिल में, पेन में नहीं। अच्छा, एक बार डेबिट क्रेडिट आ गया, आता का है, अब क्या करूं? अभी आप भारी वाला साइड क्या है? भारी वाला साइड, भारी वाला साइड तो डेबिट है 20,000 ना। ओके, वो पेन में ग्रैंड टोटल में दोनों साइड पे लिखो, डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, पहले ग्रैंड टोटल, बाद में रफ टोटल, और भारी वाला साइड दोनों साइड पे। इफ यू पे अटेंशन, डेबिट इज एग्जैक्ट 20, परफेक्ट। क्रेडिट का टोटल इज नॉट 20, वो तो 12 है, सो देयर इज अ गैप 12 और 20 के बीच में, 12 और 20 के बीच गैप है। वो गैप को क्या कहते हैं? वो गैप पहले तो लिख लो 8000 सर्कल में। क्यों? क्योंकि दैट इज द मिसिंग नंबर। इसको लास्ट डे पर, फेब का लास्ट डे हो जाता है 28 फेब, लास्ट डे, जैन का लास्ट डे, मार्च का लास्ट डे, तो ये जो कास्टिंग होता है ना, ये लास्ट डे पर होता है।
ओके, क्या लिखेंगे? बैलेंस, बाय बैलेंस कैरीड डाउन, सी डी इसको कहते हैं कैरीड डाउन। मैं इसको पिकअप कर रहा हूं। ओके, एक मिनट, क्या है देखो, 20,000 डेबिट के टोटल में आया, 12,000 क्रेडिट के टोटल में आया। ओके, डेबिट द रिसीवर, राघव को हमने 1 तारीख को 6,000 का माल दिया, 17 को 14,000 का माल, मतलब हमने उसे 20,000 का माल दिया, 20,000। अब वो पैसे लौटाना चाहिए 20,000, बट उसने ऑलरेडी हमको क्रेडिट द गिवर 12,000 दे दिया है। अगेन 20,000 का वो है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर है वो 12,000 का। अच्छा, मैंने उसको 20,000 का माल दिया, उसने मेरे को 12,000 दे दिया, तो भाई बचा कितना है? अरे बचा 8,000 है, उसको देना है, ये उसका बैलेंस है। और यही हम एग्जैक्टली लेजर अकाउंट में दिखाते हैं। इसको कहते हैं नेट इफेक्ट। इसके पहले कहा था इंपॉर्टेंस ऑफ लेजर, नेट इफेक्ट। वी कैन नॉट डू दिस, ये जर्नल में पॉसिबल नहीं है, इसके लिए इसको हमको लेजर में डिस्प्ले करना पड़ता है। एंड एवरी अकाउंट, राघव, राम, श्याम, अमर, अकबर, एंथोनी, किसी का भी अकाउंट बनाओ, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, आपको नेट इफेक्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज द आंसर कि राघव तेको तो 8,000 देना है हमको, हाँ, बैलेंस हमको बताना है, विच इज डन ऑन द लास्ट डे। देन दिस इज पिक्ड अप, ये जो क्रेडिट है ना, यहाँ से पिकअप करो और अगले मंथ में उसे लेकर जाओ। फेब के बाद क्या आता है? मार्च, ऑपोजिट साइड पे, ऑपोजिट साइड। तो मार्च 1 को हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,000। सो इन एवरी लेजर, फेब के अंदर क्या था? क्लोजिंग बैलेंस। अगले मंथ में क्या आया? ओपनिंग बैलेंस। आई रिपीट, सेम मंथ में क्लोजिंग, अगले मंथ में ओपनिंग। क्लोजिंग को कहते हैं कैरीड डाउन, ओपनिंग को कहते हैं ब्रॉट डाउन। एवरी लेजर विल लुक लिटिल डिफरेंट, थोड़ा अलग दिखेगा। किसी के इसमें डेबिट हैवी आएगा, किसी के इसमें क्रेडिट हैवी आएगा। अकॉर्डिंगली बैलेंस भी चेंज होगा, कभी डेबिट कभी क्रेडिट। बट लेजर का उपयोग किसके लिए है? ताकि हमको नेट इफेक्ट, NET, नेट इफेक्ट पता चले और उससे हम बैलेंस ढूंढ सके। और वो बैलेंस ढूंढने के लिए हमें कास्टिंग लेजर में करना पड़ता है। 3 चीज़ें जो जर्नल और लेजर में आप सीखोगे: जर्नलाइजेशन जर्नल में, पोस्टिंग कास्टिंग लेजर में। ये ऊपर का बस एक इंट्रोडक्शन था कि ये लेजर दिखता कैसे है, थोड़ी फीलिंग आ जाए कि ये टू का क्या चक्कर है, बाय का क्या चक्कर है, टोटल का क्या चक्कर है, कास्टिंग पोस्टिंग होता क्या है। नेक्स्ट टाइम के लेक्चर्स से हम थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम लेंगे और बड़े प्रॉब्लम में और बहुत लेजर अकाउंट्स का हम प्रैक्टिस करेंगे। आज आई होप, आशा करता हूँ कि आपको थोड़ा तो आइडिया लेजर के बारे में आ चुका है। ये हमेशा जर्नल के बाद ही बनाया जाता है। कितने लेजर? कभी 4, कभी 5, कभी 10 बज सकते हैं। टीचर जो कहे एग्जामिनेशन में, उसके हिसाब आपको, उसके मुताबिक, अकॉर्डिंग टू दैट आपको लेजर्स कंस्ट्रक्ट करते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। हर नए टॉपिक में पहले लेक्चर में थोड़ा ज़्यादा टाइम ज़रूर जाता है, बट वो टाइम देना ज़रूरी है मुझे और आपको, सो दैट कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जा सके। ओके, अगली बार मिलेंगे एक बेटर क्वेश्चन के साथ में एंड अ लॉट मोर प्रैक्टिस के साथ में। टिल दैट टाइम, अगर आप पुराने हो शेयरिंग करें, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाएं एंड थोड़ा इंतज़ार करें हमारे नेक्स्ट लेक्चर का। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। कुछ डाउट हो, क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स का यूज़ ज़रूर करें। तब तक के लिए टेक केयर, अपना, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।